Hello students, now I'm going to continue the chapter real numbers of 9th standard. So in previous lecture we learned about the rational numbers. Now see what is the irrational numbers. So the number which is not rational is called as the irrational number, and the set of irrational number is denoted by the q dash. For examples, that is root 3, root 5, that is root 8. Also there are negatives, that is minus root 3, minus root 5, minus 8, etc. So such type of numbers are called as the irrational number. And the most important, that is the decimal form of an irrational number, is non-recurring and non-terminating. So see, it is non-recurring and non-terminating. So rational number में हमने देखा था कि वो रिकरिंग भी नॉन रिकरिंग भी रहते थे, लेकिन वो टर्मिनेटिंग भी रहते थे. नाउ सी यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है. सो रूट टू, अगर हमने रूट टू का आंसर फाइंड आउट किया तो हमें इस तरह से मिलेगा, दैट इज 1.42413135 सो एंड डैश डैश मीन्स इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स यहाँ पे कौन सा भी नंबर हमें रिपीट नहीं मिल रहा है. सो इट्स अ नॉन रिकरिंग नंबर. Then root 3, that is 1.73205080 dash dash dash. So again it is non-terminating and also it is non-recurring. Root 5, same, that is 2.23606797 dash dash dash. Again it is non-terminating and non-recurring. So such type of numbers are called as the irrational numbers. Now we're going to see the properties of an irrational number. So rational numbers और irrational numbers का अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका आंसर हमें irrational number ही मिलता है. See here, if we take the addition or subtraction of rational and irrational number, उसका आंसर irrational number ही आता है. Similarly, if we take any non-zero number, that is non-zero rational number and irrational number, and if we are going to take the product, then the answer is also irrational number. नेक्स्ट वन, अगर हमने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लिया है और उसका डिवीजन हमने इरेशनल नंबर के साथ किया है तो उसका भी आंसर हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है. Now see the what is the meaning of real numbers or definition. So all rational numbers and all irrational numbers together make a set of real numbers. Means real numbers वो ऐसे नंबर है जिनमें either rational नंबर होंगे और irrational नंबर होंगे, और दोनों भी हो सकते हैं. रैशनल और इरेशनल मिला के हमें रियल नंबर्स मिलते हैं. सो इट इज़ डिनोटेड बाय आर. सो सिंबॉलिक डेफिनेशन, दैट इज द यूनियन ऑफ क्यू, दैट इज रैशनल नंबर, and q dash, that is irrational number. So the union of rational and irrational number together called as the real numbers. Next, the properties of order relation on the real numbers. So for any two real numbers a and b, one and only one of the following relation must hold. So अगर ये दोनों रियल नंबर्स होंगे तो उसमें ये तीन रिलेशन पे कि कोई भी एक रिलेशन तो होगा ही, दैट इज़ वो दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर, और वो ए जो है वो ए इज़ लेस दैन बी होगा और ए इज़ ग्रेटर दैन बी होगा. ये तीन रेशो में, ये तीन रिलेशन में से कोई भी एक रिलेशन हमें इसमें दिखाई देगा. नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी, देन ए इज़ लेस दैन सी. Next one, that is if a is less than b, then a plus c, just we are going to add same numbers to the both side, a plus c is less than b plus c. हम अगर ऐसा कंसिडर करते कि a is less than b, then if c is greater than 0, then ac is less than bc, or if c is less than 0, then ac is greater than bc. Next one, the square root of the negative real number is not a real number, and the square root of 0 is always 0. Every rational number is a real number, but every real number may not be a rational number. So we know that is how natural numbers set contains which numbers,
देन होल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स में कौन से आते हैं, ये सब नंबर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि इरेशनल नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। सो हियर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट द रूट 5. रूट 5 इट इज़ अ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. सो आप सबको नंबर लाइन पता होगी. सो अगर ये नंबर लाइन है तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे हम सेंटर में 0 लिखते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3. तो इस नंबर लाइन पे रूट 5 कहाँ पे आएगा? सो ये ढूंढने के लिए ये एक वेरी सिंपल मेथड है. सो यू हैव टू ड्रॉ इट विथ अ स्केल एंड पेंसिल एंड राउंडर. जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ दिस वन. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये हम थोड़ा सा रफ वे में फिर से आपको बताती हूँ. सो सी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम बोलने वाले हैं 1 सेंटीमीटर. मीन्स ये डिस्टेंस हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन हम उसे 1 सेंटीमीटर है करके बोलेंगे. सब ये 2 सेंटीमीटर के मार्किंग मैंने कर दिए हैं यहाँ पे. बस 2 या 3 ड्रॉ करेंगे तो भी चल सकता है. सो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, यहाँ से हम 0 लिखेंगे. ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमें इसको 1 बोलना है. सो दिस टोटल डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर. जस्ट वी गोइंग टू नेम दिस पॉइंट. ये 0 है, लेकिन यहाँ पे हम O कंसिडर करेंगे. मैं नीचे 0 लिखती हूँ, और ये पॉइंट जो है उसको हम A बोलेंगे. देन आफ्टर ड्रॉइंग दिस यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन. ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है. कितना लेना है, जो जितना OA मैंने लिया है उतना ही हमें ये पॉइंट लेना है. दैट इज यहाँ पे हम B लिखेंगे. मीन्स OA डिस्टेंस एंड AB डिस्टेंस मस्ट बी सेम. और यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये भी 1 ही है. देन वी गोइंग टू जॉइन दिस OB. Now it is a right angle triangle. So we are going to find out the OB square. So using the Pythagoras theorem, so how we can write? That is OB square is equals to OA square plus AB square. So in which triangle? In triangle OAB. यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल लिया है वो ट्रायंगल है OAB. और इस OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये OB का डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं. So the distance of OA is 1 square and AB is 1. So here we get 1 plus 1. So the answer is 2. So this is the answer of OB square. So what is the answer of OB? It is root 2. So this OB is root 2. Now we have to put your rounder on O. So rounder मैंने O पे रखा है और B तक का distance मैं rounder में लेने वाली हूँ. So put your rounder on O and the pencil on B. Means we taking the distance of OB, put your rounder on O and make a mark. So यहाँ पे मैंने ये मार्किंग कर दिया. So इसलिए मैंने बताया कि ये मार्किंग आप मत करो, सिर्फ 2 ही करो. So यहाँ पे जो मार्किंग कट होता है उसको हम नेम देंगे, दैट इज C. So O से C तक का डिस्टेंस कितना होगा? So C मैंने कितना डिस्टेंस लिया था? OB लिया था. OB डिस्टेंस कितना है? √2. मैंने √2 डिस्टेंस लेके यहाँ पे C तक का मार्किंग ड्रॉ किया है. मीन्स OB डिस्टेंस एंड OC डिस्टेंस आर सेम. सो दिस वन इज द √2. OA तक क्या है? 1 है. अगेन वी गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस C. Again it is a perpendicular line. So CD we are going to add C. Then again I am going to join this OD. So ये distance भी 1 ही है. Now which triangle we see here? That is OCD. So in triangle OCD again we are going to find out the OD. So OD square is equals to OC square
प्लस CD स्क्वायर. ठीक है. नाउ व्हाट इज OC डिस्टेंस? OC डिस्टेंस इज √2. √2 का स्क्वायर हम लेंगे. CD डिस्टेंस कितना है? 1 है. सो √2 स्क्वायर is 2 plus 1. So here we get 3. And so the OD square is 3. So OD is equal to √3. मीन्स ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है OD, इट इज़ नथिंग बट द √3 डिस्टेंस. मीन्स O एंड D में कितना डिस्टेंस है? √3 है. अगेन वी हैव टू पुट डाउन द राउंडर ऑन O एंड वी हैव टू टेक द डिस्टेंस अप टू D. मीन्स हमने कितना डिस्टेंस लिया है? √3 लिया है. O पे राउंडर रख के हमें D से नीचे मार्किंग करना है. सो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे E. देन अगेन वी हैव टू ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन. और यहाँ ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है. एंड ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है? 1 ही लिया है. सो यहाँ पे 1 हमने किया ड्रॉ. अगेन वी गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट. ये होगा F. नाउ सी हमने OD जितना डिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्किंग किया थे. सो OD डिस्टेंस कितना है? √3. सो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया? √3. Now see, we are going to see the triangle OEF. So in triangle OEF, so we get that is OF square is equals to OE square plus EF square. So what is OE square? It is √3 square plus EF is 1 square. So √3 square is 3 plus 1. So together here we get 4. So this is the answer of OF square, that is 4. And so what is OF? OF is 2, taking the square root. So here the distance is 2. Means अगर यहाँ से that is O से F तक का distance कितना है? अभी 2 है. ये जो distance है वो 2 है. So again हमें राउंडर जो है वो O पे रखना है और F तक का distance लेंगे हम. that is कितना लिया हमने? 2. और O पे राउंडर रख के F से हम नीचे ऐसा मार्किंग करेंगे. Now this point is G. So tell me what is the distance OG? हमने कितना डिस्टेंस लिया था? 2. और वहाँ से हमने ये मार्किंग करके नीचे डाला था. सो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 2. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2. अगेन वी ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन. एंड ये डिस्टेंस, ये सब का डिस्टेंस सेम है. सो यहाँ जो है वो 1 है. इसे हम नेम देंगे H. नाउ वी गोइंग टू ड्रॉ दिस OH. ठीक है. सो इन ट्रायंगल कौन सा है अभी? OGH. सो इन ट्रायंगल OGH अगेन वी गोइंग टू सी द पाइथागोरस. सो OH square is equals to OG square प्लस GH स्क्वायर. सो OG डिस्टेंस कितना है? OG डिस्टेंस है O से G तक का डिस्टेंस है 2. सो यहाँ पे हम लेंगे 2 स्क्वायर प्लस GH इज 1. सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1. सो हियर वी गेट 5. सो OH स्क्वायर वी गेट 5. सो व्हाट इज OH? OH इज √5. सो हियर वी गेट द डिस्टेंस OH. O से H तक का जो डिस्टेंस है वो है √5. सो अगेन वी हैव टू टेक द डिस्टेंस OH. O से H तक का डिस्टेंस ले लो राउंडर में. राउंडर O पे रखो और यहाँ से नीचे मार्किंग करना है हमें. सो यहाँ पे होगा I. सो सी हमने कितना डिस्टेंस लिया था? O से H तक का डिस्टेंस लिया था, वो कितना है? √5. सो यहाँ पे आएगा √5. Again we draw this vertical line, that is perpendicular line, taking the same distance, that is 1. यहाँ पे होगा point C. Now see, we have to plot the point √5. Now see, हमें √5 मिल गया. Now see, √5 कहाँ पे आता है? So यहाँ पे होगा 0, 1, √2, √3, उसके बाद 2, उसके बाद √5 डिस्टेंस मिलता है हमें. मीन्स 1 और 2 के बीच में ये 2 पॉइंट्स रहते हैं.
सो विच आर द इरेशनल नंबर, दैट इज √2 एंड √3. 2 के बाद जो आता है वो क्या है, √5. सो इन दिस वे we can plot the number of points, that is number of irrational numbers on the number line. So यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था. So अगर आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ दिस √5 ऑन द नंबर लाइन, सो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है और साइड बाय साइड आपको ये कैलकुलेशन भी करना है. विदाउट कैलकुलेशन यू कैन ड्रॉ दिस. सो ये दोनों अगर आप करेंगे तभी आपको मार्क मिल सकते हैं. So this is all about how we can represent the irrational number on the number line. So in next lecture we will see the practice set 2.2. Thank you.